हाँ प्रणाम महर्षि, ज्वाइन कर लीजिए आप जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। महाराज जी भी ज्वाइन कर लिए। नमस्कार। सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति। हरि ओम। तो इस बार का जो विषय है हमारा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेथ। ओके, तो लता यस महाराज। तुम समरी करो। Pranam Maharaj. The greatest irony of human life, as illustrated by the story of Yudhishthir and Yaksha, indicate that in spite of coming across deaths in many forms in our daily lives, we hope to defy death and live forever. Being insensitive to death and misery is recognized as a form of dull spiritual insight and insensitivity. However, the author of the article has also reminded the readers that the thought of death at all times can be harmful and injurious. Therefore, a person must try and overcome both the fear of death as well as the attachment to life. This teaching is validated by the sayings of Swami Vivekananda, who recommended people to remember death often so as to gain courage and strength. Great saints like Lord Buddha, Rishi Yajnavalkya, and Ramana Maharshi, in their lives demonstrated sensitivity to death and misery and showed approaches by which they conquered the concept of death. One of the methods by which we can overcome the fear of death and misery is to acquire the firm conviction that we are beyond the flesh and blood of our body, and behind our body and mind lies a soul that is indestructible. However, the mere knowledge does not make difference unless we reflect and get established in this conviction, which may be difficult. Hey, just a minute. संजय जी महाराज। साउंड नहीं आ रहा है। बीच बीच में गायब हो रहा है। हाँ, साउंड नहीं आ रहा है। एक लैपटॉप वॉइस से आ रहा है शायद, इसलिए है। माइक्रोफोन ऐसे हेडफोन होने से माइक्रोफोन तो शायद वॉइस क्लैरिटी बढ़ जाए। फिर भी सब लोगों ने म्यूट कर देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है जी। हाँ ओके, फिर से ट्राई करो लता, रीट्राई। अरे Yes. जहाँ ब्रोका उससे चालू करो, कंटिन्यू। There was some problem. Okay. Okay, but therefore, listening to saints, reasoning, practicing meditation on this thought can assist us in getting established in this conviction. Is Better. this clear now, Much Maharaj? better, much better. हाँ, Much अभी better. अच्छा। However, this process may not be suitable for us who have difficulty in differentiating between self and the true self. In these cases, the body consciousness is too strong to allow us to contemplate on the true nature of Atman. Therefore, the other method recommended to establish in this conviction is by constantly remembering and meditating on the divinity of personalities who defied death. Popular Hindu deities
like Shiva, Vishnu, and Krishna in their divine form symbolizes their conquest over death. It is also reflected in the symbol of crucified Jesus Christ, who inspires solace to millions of Christians in their sufferings. Thakur Sri Ramakrishna taught us to conquer death and misery by holding on to God with love and devotion. In one incident, a grief-struck gentleman came to Thakur for solace after losing his grown-up son to death. Thakur instilled courage in him through a song which urges one to recognize and fight death with the weapon of God's name. Thus, there are two paths to attain immortality and conquer death. One, the path of knowledge, and the other is the path of devotion. The essence of the two approaches is to give up attachment to the body as self, and instead of being scared of death, learn from death to acknowledge the uncertainty and impermanence of life and cultivate a spirit of dispassion. Good, very good. Short, but it was very good. You have covered some important points. Okay. Now, next is Subir. प्रणाम महाराज. हाँ भाई, you take up your questions. We take up your questions because they are related to death. So you ask the questions and we will discuss. Okay. Yes, Maharaj ji. First question: how to develop a feeling that death is imminent, not out of an emotion of fear, but with a feeling that whenever it comes, I am ready. So there can be many approaches, you know. You have only told how to develop. There are a number of approaches. Say, for example, I am living in Kashi. तो काशी तो मुक्ति क्षेत्र है, यहाँ तो लोग मरने के लिए आते हैं ना. तो यहाँ पे तो मणिकर्णिका और शिवजी और मृत्यु जो है वो एब्सोल्यूट रियलिटी है. यहाँ रोज बराबर चारों कोई न कोई एक हमारी सड़क से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हम रोज सुनते. तो क्या हुआ, ये यहाँ पे रियलिटी डेथ जो है वो एब्सोल्यूट रियलिटी, कोई इसको लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई खास बात है. Isn't it? आप लोग समझ सकते हो काशी जो ऐसी है ना. तो एक्चुअली थिंकिंग, विचार के द्वारा यह डेवलप किया जाए कि डेथ इज ए रियलिटी, वो हमेशा विद्यमान है. दूसरा ये है, अभी मैंने कहा काशी का है, और कुछ लोग तो मणिकर्णिका जाते हैं और वहां पर बैठते हैं, देखते हैं रेगुलरली. कई बार सप्ताह में एक दिन जाएंगे या कुछ दिन जाएंगे, वहां जाके और बैठेंगे और मणिकर्णिका को देखेंगे, कितने जल रहे हैं, चिताएं जल रही हैं. तो आप करिए, एक आध बार चले जाइए, आप स्मशान में जाके देखिए. मैंने और भी सुना है, यहाँ नहीं, मणिकर्णिका में यहाँ नहीं, लेकिन दूसरी जगह पे लोग जाते हैं, स्मशान में जाके बैठ के और बैठे रहते हैं, देखते हैं, मरने वाले लोगों को देखते हैं, उनको जलाया जा रहा है, उसको देखते हैं. मतलब ये है कि डेथ मस्ट नॉट रिमेन अनफेमिलियर, यू बिकम फेमिलियर विद डेथ. अरे सभी को हो रहा है ना. वो मेरे लेक्चर में तुमने, मेरे आर्टिकल में तो ही है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति रम मंदिरम शेषास्तिरतम गच्छन्ति. हम लाइफ से इतने रिलेटेड हो गए हैं, इतने अटैच हो गए हैं कि हम मानो डेथ को भूल गए. तो इस तुम्हारे आपके प्रश्न का उत्तर ये होगा कि कई देयर आर वेरियस अप्रोचेस बाय व्हिच यू कैन बिकम फेमिलियर विद डेथ. यू कैन फील, एक इसमें भी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में है कि एक रोज उठो कि देखो कि प्रॉब्ली दिस इज माय लास्ट डे, है ना. ऐसा इमिटेशन क्राइस्ट में भी है कि ये सोचो दिस इज माय लास्ट डे, सो जाओ, उसके बाद पता नहीं कल मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा. These are the approaches by which you can make death more familiar. Is that okay?
जी महाराज जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन तो ठीक है तुम्हारा। Second question, we see death all around us, and yet we think that my death is far away. Is it because of the fifth klesha of Avinivesh, यस यस, which makes Yeah. us want to cling Yeah. to life and not think of death? अभिनिवेश के कारण ही है। अभिनिवेश क्या है? क्लिंगिंग टू लाइफ एंड थिंकिंग दैट वी विल नॉट डाई। अभिनिवेश की परिभाषा है रूढ़ो विदुषो अपि रूढ़ो अभिनिवेश, ऐसा ही कहा है। उन्होंने परिभाषा नहीं की है, यही कहा, उसका कैरेक्टर बताया है कि विद्यमान व्यक्ति वो जानते हैं कि मृत्यु होगी, फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं करते। वही है ये, इट इज सेम एज अभिनिवेश। थर्ड क्वेश्चन। Last question is, we practice detachment to our near and dear ones by either thinking they are no one to us, or and only God is our own, or by thinking of them as manifestations of God and serving them. But how to detach oneself from them, knowing the inevitability of disease when near and dear ones are affected? नहीं, ऐसा है कि डियर और डियर वन के जाने की बात तो नहीं। बुद्ध के जीवन में तो कोई डेथ आई नहीं थी, कोई मरा नहीं था। उन्होंने सोचा कि मेरी क्या यशोधरा भी मर जाएगी, उसको भी बुढ़ापा आ जाएगा क्या, उसको बीमारी आएगी, केवल विचार के द्वारा हुआ। पॉइंट इज जो भी कुछ करना है वो विचार के द्वारा करना है। अगर आप भगवान से लगे रहो, या फिर जैसा अभी आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन जो कुछ है वो भगवान के मैनिफेस्टेशन से चारों ओर है। और प्रश्न ये है कि कितना गहरा आपका डिटैचमेंट है, और मृत्यु के कारण, मृत्यु का विचार करते करते संसार के और संसार के लोगों से कितना गहरा डिटैचमेंट हो सकता है, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। लेकिन प्रोसेस ये विचार की ही प्रोसेस है और कुछ नहीं। कोई विचार किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये कह सकते हैं कि ये सब भगवान के रूप हैं, या कह सकते हैं कि ये सब अनित्य है, कोई भी हमारा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। एनी अप्रोच, देयर आर वेरियस अप्रोच बाय व्हिच यू कैन बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, दैट्स ऑल। ओके जी महाराज। वैसे ये इट वाज नॉट अ वेरी क्लियर क्वेश्चन। दिलीप भाई, ये जो अभी आपने जवाब दिया है, उसमें मेरा एक सवाल ये है कि ये हम सोचते हैं जब नियर डियर की डेथ होती है कि वास्तव में मृत्यु तो है और कल हो सकता है कि मैं भी जाऊं, लेकिन हम फिर भी एनग्रोस रहते हैं सांसारिक गतिविधियों में, ये जानते हुए कि वी आर गोइंग टू डाई। काशी में जाके जी, तो काशी में आके जाके रहो ना, कुछ दिन आके रखो तो पता चलेगा तुमको। अब अपने आप पता चल जाएगा कि डेथ कितनी रियल है। यहाँ तो लोग मरने के लिए ही आते हैं। लोग रहते हैं यहाँ पे, वो सीनियर सिटीजन होम है, और फॉर जेंट्स और लेडीज के लिए है और जेंट्स के लिए है। तो वो लोग यहाँ पे मरने के लिए ही आके रहते हैं। तो उनके लिए तो डेथ जो है बिल्कुल कॉमन है, नेचुरल है। और काशी में तो आप जाके देखो, मणिकर्णिका में लाइन लगी हुई है। तो आओ ना, काशी में आके रहो तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू मेक डेथ रियल। चलो दूसरा प्रश्न पूछो। नॉट टू कॉम्प्रिहेंड, तुम्हारा क्वेश्चन 1 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर ये संबंधित है। बोलो तो पहला क्वेश्चन। not to comprehend the reality of death or to recognize the fact what we too shall have to die someday is a sign of poor sensitivity and dull spiritual insight. That is my question. Dull spiritual insight. हाँ, ये आपका आर्टिकल है। If we feel like that, then no one will be active in life and always be afraid of death, and the world will not run as it is running today or in any other way. That is my question. And number 3, दुनिया जो है रो क्या थी? नंबर 3 नहीं, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन भी इसी तरह का है। हाँ,
तो वो बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको हाँ, पढ़ो। इसमें से जवाब देते हैं। हाँ, थॉमस ए केम्पिस advises us of what use is a long life. If we amend so little, then it is said. एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, कंप्लीट उनने लंबा लिख के दिया। ठीक है ठीक है। वो हमें उसने कहा है कि अगर जीवन का क्या लाभ अगर हम अपने जीवन को नहीं सुधारें। हाँ, तो आपका प्रश्न है, if it is so, then every man would be a pessimist, which is not possible. अच्छा, और आपका हिंदी में भी तीसरा क्वेश्चन देखिए। हाँ, दीर्घ जीवन सदा हमें अच्छा नहीं बनाता, बल्कि हमारे पापों की ही वृद्धि होती है। तो फिर जीने का क्या मतलब? हाँ, तो ये आपने ये तीनों में एक ही चीज उठाई है ना जी, कि आपने पहले में भी यही कहा आपने कि क्या फायदा अगर मृत्यु से सब नष्ट हो जाएगा, तो क्या फायदा जीने, क्या मतलब? बस अपने अपने सिर पे हाथ रख के बैठे रहो, अरे सब तो खत्म होने ही वाला है, यस, सब अनित्य है, क्या फायदा। हाँ, यही हो। अरे सारी आध्यात्मिकता इसी के ऊपर है। बुद्ध ने तो एक जवान, एक बूढ़े को देखा, जी, एक बीमार को देखा और मृत शरीर को देखा, हम्म, और उनके जीवन में क्या डिप्रेशन आया? नहीं, वो निकल गए, कठोर तपस्या की, क्या उनका जीवन कोई सामान्य ऑर्डिनरी डिप्रेशन का जीवन तो नहीं था, नहीं, पेसिमिज्म भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। पॉइंट इज दिस, यानी ये मृत्यु का विचार जो किया जाता है, ये विचार जहां पर भी है, विवेक के लिए विचार किया जाता है। ये संसार को बुरा बताया जाता है, भयानक है संसार, इसमें सब कोई दुख नहीं, दुख है संसार में, ये सारे के सारे विचार है ना, विवेक के विचार है ना। ये विचार जी, किस लिए किए जाते हैं? कठोर तपस्या के लिए किए जाते हैं। तपस्या के द्वारा इनके मन को आप हटाकर ऊपर लगाओ। अच्छा, आप कहते हैं बुद्ध ने उसके बाद में तो कुछ नहीं करेगा, पेसिमिस्ट हो जाएगा। बुद्ध ने पेसिमिस्ट हुए क्या? उन्होंने कितना काम किया है। अरे ये जगत तो रहेगा ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, ये सब दुख ही दुख है। हाँ, जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। हाँ, ये सब हुआ वासना के कारण सब होता है। वो उनका आर्य सत्य है ना, 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर करने का उपाय है, 4 अपनों ने कारण निकाले। और उसके बाद परिणाम क्या हुआ? उसके बाद में सारे संसार का कल्याण कर ली के सारा जीवन उन्होंने निकाल दिया। बौद्ध धर्म जो है वो कल्याण का धर्म है, और आप बोलते हो कि ऐसा करने से आप बड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। आपको ये लगता है कि अरे आप ये मृत्यु तो है, सब जगह आएगी, अब संसार छोड़ के आप साधु बन जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, न माया मिली, न राम, न घर के रहे, न घाट के, है ना। इसके बदले तो खाओ पियो मजा करो, है? जब तक जियो तब तक घी पियो मजे से, तब तक यानी ऋण लेकर। दिलीप भाई से पैसे लेके आप ड्राफ्ट कर देना, सिग्नेचर कर देना, लेकिन मर जाओगे उसके बाद दिलीप भाई पैसा मांगने तो आने वाला नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये दृष्टिकोण। तो ये एक दृष्टिकोण है। अच्छा, संसार के लोग तो इसको कोई मानते नहीं है, मृत्यु को सोचता तक नहीं है, और संसार मजे से चल रहा है। आपको चिंता हो रही है संसार की कि अगर ये मान लिया तो संसार ठप हो जाएगा, कोई करेगा नहीं। अरे छोड़ो, 99% जो है वो बुद्ध की बात नहीं मानेंगे, हमारी ये मृत्यु की बात भी नहीं मानेंगे। सब जगह मरते हुए लोगों को देखते हुए भी वो मस्ती से जीवन बिताएंगे, कोई नहीं सुनता है। तुम इतने चिंता मत करो कि पेसिमिस्ट हो जाएंगे, कोई पेसिमिस्ट नहीं होता। पहली बात तो जो मैंने कहा ना कि पेसिमिस्ट हो जावे तो भी कोई बात नहीं है। बुद्ध को जब हुआ उसके बाद में इतनी कठोर तपस्या की, हड्डियां निकल आई उनकी, कुछ भी नहीं हुआ, तब उनको मार ने आक्रमण किया था, मालूम है ना। मार ने, कहानी है, मार यानी टेम्पटेशन। अरे छोड़ो, कहाँ फंसे हुए हो, कुछ नहीं है, खाओ पियो मजा करो।
ये कहाँ तुम फंस गई तपस्या के अंदर? मृत्यु आएगी तब आएगी, देखी जाएगी, तो क्या चिंता करते हो? बुद्ध ने कहा, स्वामी विवेकानंद उसको कहते हैं उसकी भाषा में कि डेथ इज बेटर देन वेजिटेटिव एक्सिस्टेंस, यानी संसार के सामान्य भोगों में पड़े रहने से तो मृत्यु बेहतर है। ये कहते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं। स्वामी विवेकानंद और भी कहते हैं, अरे भाई इतने लोग कष्ट तपस्या करते हैं, कितने लोगों को मिलता है? भगवान गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेतु कश्चित् यतति चित्तये, हजारों लोगों में एक आध जो है वो साधना करते हैं। कई लोग करते ही नहीं, कौन कितने लोग करते हैं जानते हुए भी, और उनमें भी उन हजारों साधना करने वालों में एक आध को कोई तत्व प्राप्त होता है, फिर भी लोग करते हैं। तो प्रश्न ये है क्या करें? अरे छोड़ो, अपनी बीबी शादी करो, मजा करो, आनंद करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर राम नहीं मिला तो क्या श्यामा से मोहब्बत करके और प्रेम करके और बच्चे पैदा करूं? नहीं, ये नहीं करूं। ये दैट इज द पॉइंट। ये आपको इसमें 3 जगह आपने ये पॉइंट उठाया है। ये पेसिमिज्म हो जाएगा, संसार फिर चलेगा नहीं, एक्टिविटी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। यानी अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में जाना है तो मृत्यु को सोचना पड़ेगा, और इतना सोचना पड़ेगा कि आप व्याकुल हो जावें। अरे मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, आज आ जाएगी, और मैंने अभी तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, मैं इसको मृत्यु को जीत नहीं सका। तो मैंने उदाहरण दृष्टांत तो दिए हैं कैसे करना। आत्म तत्व का चिंतन करो, अपने आत्म स्वरूप को जान लो, तो मृत्यु पर प्राप्त हो गई विजय। देह मरेगी, मैं आत्मा तो कभी मरने वाला नहीं। या फिर आप भगवान शिव की बात कीजिए, तो शिव जी जो है वो तो मृत्यु के राजा हैं, है ना? वो तो अस्पताल में ही है, उनके तो सर्प जो है वो आडंबर है। भगवान विष्णु आपके वो तो शेषनाग पे बढ़िया सो रहे हैं। और तो जितने भी देवी हमारे जो देवता वगैरह हैं, ये तो सब मृत्यु के विजय करने वाले ही हैं। उनकी आराधना कीजिए और मृत्यु से प्राप्त। तो इन तीनों क्वेश्चंस में आपने जो पॉइंट उठाया है वो है ठीक पॉइंट नहीं है। कोई पेसिमिज्म नहीं होता मृत्यु को छोड़कर, कोई डिप्रेशन नहीं होता। संसार जो है वो बढ़िया चलता है और अच्छी तरह चलता है। लोग यहाँ पर काशी में रहते हैं और बढ़िया बिजनेस चलता रहता है, और सब जानते हैं हमें मनी करने का, सबके दिमाग में, सबके दिमाग में, बूढ़ा बूढ़ी सब जानते हैं। लड़का अपना बिजनेस कर रहा है, बूढ़ा बूढ़ी जानते हैं कि मणिकर्णिका का है, और मर जाएंगे तो हमारा लड़का जो है मणिकर्णिका ले जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये तीनों प्रश्न आपके दिस आर नॉट वैलिड इन दिस सेंस। महाराज इसमें मेरा सवाल एक और है, वो ये है कि ये यदि सोच लेते हैं कि मौत किसी भी पल आ सकती है, देन व्हाट इज द एक थिंग, यदि ये माइंडसेट पक्का बन जाए तो ये माइंडसेट फिर रहता है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द एक्टिविटीज? फिर मैं आश्रम क्यों जाऊं इतवार को, कभी भी मौत हो जाएगी। हाँ तो मर जाने, तो जब हो जाएगी, जब हो जाएगी तो हो जाएगी, हो जाएगी तो हो जाएगी। पर आज मेरे माइंड में ये है कि डेफिनेटली आई विल गो एंड आई विल गेट समथिंग, यू से आई विल गेट समथिंग फ्रॉम आश्रम, ये उम्मीद में हम जाते हैं न, उसके बावजूद हाँ ये हमें मालूम है कि डेथ नेक्स्ट मिनट हो जाएगी, पर नहीं होगी ये सोच के हम जा रहे हैं। हाँ बस ठीक है। आज हम आपके पास जो ये वेब पे आए हैं इसीलिए आए हैं, वरना ये मालूम है कि एनी टाइम वी डाई देन व्हाई वी शुड हियर यू। देखो ये है कि तुम ऐसे प्रयत्न करो मानो आपको 1000 वर्ष जीना है, एंड रेडी टू डाई इन अ मोमेंट। बस बस ठीक तो है, बस ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज एक प्रश्न बीच में कर लूं? हाँ कर लो। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि सुबह सोचो कि शाम तक रहूंगा कि नहीं रहूंगा, पता नहीं। तो ये अगर सुबह मैं सोचता हूँ तो दिन भर के गतिविधि में सब ये भूल जाता हूँ, और फिर वही के वही सिचुएशन फिर हो जाता है। कोई बात नहीं, तो अवेयरनेस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये करने की वो जरूरत है या बाय प्रैक्टिस नेचुरल। वो तो ये भी सोचते हैं कि सारा दिन मैंने क्या, जब सोऊंगा तो सोचूंगा पता नहीं उठूंगा कि नहीं उठूंगा, ये बोलते हैं ना। जी, So don't worry about it. Try to practice as जी, much जी। as you can. That's all. प्रैक्टिस राइट। सेकंड दिलीप क्वेश्चन, भाई, दूसरा और क्या क्वेश्चन? हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, मेडिटेट अपॉन डिवाइन पर्सनालिटी लाइक विष्णु, कृष्ण एंड शिवा, वी फाइंड द सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a remarkable fact. Is bhakti yoga is the only means to conquer death? Because there is always a symbol, just you said, with all gods. नहीं नहीं, वो इसके बाद आपने पहले नहीं देखा, उसके पहले का, नहीं तो फिर एकांतवाद उसके में पहले ये तो लिखा है उसके पहले जो है ना, हाँ, नहीं एकांतवास का प्रश्न नहीं उठता। हाँ, यानी आप आर्टिकल को पढ़िए, पहले मैंने ज्ञान योग में लिखा है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक उपाय है अपने आत्मा का चिंतन करें। आत्मा कभी मरेगी नहीं, जी, देह मरेगी, आत्मा तो मरने वाली है, तुम क्यों चिंता करते हो? पहली बात। जी, अगर ये नहीं कर पाओ तो शिव जी का ध्यान करो, विष्णु का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो। कृष्ण तो मृत्यु के ऊपर डांस किया है, विष्णु है मृत्यु पर सो रहे हैं, इनको आप पकड़े रहो तो आप मृत्यु पर विजय पाओ। ये भक्ति योग हो गया, ठीक तो है? ठीक है जी। हाँ। Can death ceases when I am one with life? Then alone can misery ceases when I am one with happiness itself. Then alone can all error ceases when I am one with knowledge itself. It's a beautiful, हाँ, ये मेरे को इसका अर्थ ब्यूटीफुल। तीन के साथ अपने को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करना है ना, जी, क्या कहा है? हाँ, आइडेंटिफाई योरसेल्फ विथ लाइफ, yes, identify with knowledge, yes, identify with bliss, happiness, isn't it? yes, ये क्या है? ये हाँ, हो गया सच्चिदानंद। जी, सत यानी एग्जिस्टेंस, yes, चित यानी नॉलेज, हम्म, और आनंद happiness, ब्लिस। yes, अगर आप सच्चिदानंद के साथ में यूनियन में रहेंगे हाँ, तो यू गो बियॉन्ड, यानी आप तीनों से इसके ऊपर चले जाओगे, ये संसार से में उसके ऊपर चले जाओगे। कहाँ है? एक मिनट, मेरे पास ही है, उसको कहते हैं ये इसका Then alone can death Then alone. cease when I am one with life. Then alone misery cease when I am one with happiness. Then alone can error cease when I am one with knowledge. itself. तो मृत्यु, अज्ञान और दुख से दूर होने के लिए सच्चिदानंद का चिंतन। परमात्मा, जिस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं वो हमारे जो भी इष्ट हैं वो सत्स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप। आप कृष्ण का ध्यान कीजिए, हम रामकृष्ण का ध्यान करें या शिव का ध्यान करें, ये तीनों चीजें हैं, ये सच्चिदानंद के प्रतीक हैं। ठीक है? ओके महाराज, अब मेरा ये इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कोरिलेट कैसे किया जाएगा कि दैट वी शुड रिमेंबर ऑल द टाइम दैट द डेथ कैन बी एट एनी मोमेंट। ना, ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, नहीं, इधर आप बता रहे हैं कि खुश रहो, खुशी में रहे, जिंदगी में खुश रहे, नॉलेज बना रहे। और नहीं, खुश नहीं रहना, आपको सच्चिदानंद का चिंतन करना है। आप अपने इष्ट का चिंतन करोगे तो आप आनंद का चिंतन हो जाएगा। अरे आपके इष्ट जो है वो सत चित आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण जो है वो सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। शिव जी जो है उनमें भी ये तीनों हैं, उनका चिंतन करो तो आप जो है दुख से, मृत्यु से और अज्ञान से दूर। अब एक मिनट और प्लीज। तो नहीं महाराज, मेरा सवाल ये है कि कभी भी मेरे को मौत आ सकती, भगवान मैं तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरी कभी भी मौत आ सकती, नाम ले रहा हूँ, इज इट द वे? मेरा ये कहना है कि अगर आप मृत्यु को विजय करना चाहते हैं तो अगर आपको मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है तो अमर शिव जी का, अमर राम कृष्ण का या कृष्ण का ध्यान किए जो अमर है।
जो अमरत्व का चिंतन करोगे तो आप मृत्यु को जीत जाओगे। जी। होना आप कहते हैं कि भाई हम कैसे याद रखेंगे हमेशा हमेशा मृत्यु के बारे में कहते हैं, तो आप हमेशा भगवान को याद रखो ना, श्री कृष्ण को याद रखो, हमेशा कंटिन्यूअसली याद रखो। जी। हो क्या है कि अभी आप संसार में घुस गए इसलिए रात नहीं होता, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं संसार के पहले अच्छा अभ्यास कर लो ध्यान जप का करने का, उसके बाद संसार में आओ, होता नहीं है। इसलिए अब है सुबह शाम थोड़ा सा हुआ और बाकी 12 घंटे जो है वो संसार का चिंतन करते। तो जितना हो सके भगवान का चिंतन कीजिए तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम ब्लिसफुल भी हो जाओगे और आप मृत्यु के परे हो जाओगे, आप परमानंद या अमरत्व का चिंतन। जी। ठीक है दिलीप भाई, और प्रश्न था, एक और था। हाँ क्या ना? जी, अब ये दो जनरल क्वेश्चन, हिंदी प्रश्न कौन से थे तुम्हारे? हाँ मेरे जनरल क्वेश्चन है कि एक रामकृष्ण देव ने कहा है कि गंगा किनारा स्वर्ग का मार्ग है, सबको स्वर्ग मिल जाता है। यदि ये संभव है तो फिर साधना करने की। नहीं बाबा, साधना करना है, साधना करते करते गंगा के फिर से बोलो, सुना नहीं। हाँ, गंगा किनारा स्वर्ग का मार्ग है, सबको स्वर्ग मिल जाता है, ये रामकृष्ण देव ने कहा है। यदि ये संभव है तो फिर साधना करने क्या जरूरत है, गंगा किनारे जाके बैठ जाए। हाँ तो वो होता नहीं, तो होता नहीं। लोग आते हैं यहाँ पे, अरे बूढ़े हो गए, यहीं काशी में आके चले जाते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे, तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। उसका चलो मैं अभी कलकत्ता कलकत्ता जाते हैं, वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना आसान नहीं है जी। कलकत्ता में गंगा है नहीं वहां पे, लेकिन हो काशी में मृत्यु नहीं हुई। हाँ। वो गंगा के लिए तो नहीं आए थे, काशी के लिए आए थे ना जी। अगर काशी गंगा की भाव होता तो गंगा कलकत्ता को छोड़ते नहीं। तो अलग अलग भाव है। गंगा जो है वो मुक्तिदायी नहीं है, गंगा के किनारे। जी। मैंने एक श्लोक बनाया है अपने ऊपर, जी। वरम मृतम गांग तीरे वृक्ष मूले युपेक्षिते नासिसियु कक्ष मध्य वैद्य गृत्य कुरु रहस्ते। मैंने लिखा है कि गंगा के किनारे पेड़ के नीचे उपेक्षित मरना बेहतर है, न कि आईसीसीयू कक्ष में राक्षस वैद्यराज के हाथ मरने से। उसके बदले बहुत अच्छा गंगा के किनारे पेड़ के नीचे मरना अच्छा है। महाराज इसको नेक्स्ट टाइम इसको ईमेल कर दीजिए विद हिंदी ट्रांसलेशन। कर दूंगा। हमें आती नहीं है तो हमें यही रोज ईश्वर को यही याद रखेंगे। ये श्लोक मंजूर है कि बाबा आईसीसी में मत डालो बाबा, और कहीं नहीं है। हाँ, रिलेटिव्स को बोलना पड़ेगा। तो फिर ये डॉक्टरों का क्या होगा? नहीं, मैंने तो लिख के दे दिया है, मैंने तो लिख के ले दिया है बेलूर मठ में प्रेसिडेंट महाराज को कि मेरी यदि सीरियस कंडीशन हो जाए तो मेरे को आईसीसीयू में नहीं रखा जाए, ऑक्सीजन नहीं लगा जाए, सपोर्टिंग कर नहीं दिया जाए। मैंने लिख के दे दिया, राइटिंग में दिया है प्रेसिडेंट महाराज को, जनरल सेक्रेटरी को, यहाँ के सेक्रेटरी को, सबको दिया। चलो तुम्हारा और कोई प्रश्न? हाँ है। हाँ। जीवन महाराज ये है कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन तुरानंद जी महाराज ने एक स्थान पर कहा है ब्रह्म सत्य और जगत भी सत्य है। हाँ, वाह वाह। हाँ, बहुत अच्छा। ये वो लेवल के ऊपर प्रत्येक अलग अलग लेवल पे है। साधना के समय में हमको जगत को मिथ्या बोल के आगे बढ़ना पड़ता है। जब हम साधना करते हैं ना, जी। ये मिथ्या है, ये परिवर्तित हो जाएगा, चला जाएगा, ये अनित्य है, आज है कल नहीं है, ये मिथ्या है यानी असत्य है, केवल दिखाई दे रहा है। मिथ्या यानी यद असत भासमानम, जैसे आपको सांप दिख रहा है सामने, भाग रहे हो, रस्सी है तो रस्सी जो है, लेकिन क्या असत, सांप असत है लेकिन प्रतीत हो रहा है, उसको कहते हैं मिथ्या। तो ये जगत जो है ये मिथ्या है, केवल प्रतीति है। लेकिन जब हमको पता चल जाएगा कि ये प्रतीति है, तब क्या पता चल जाएगा कि वो पहले वो वहां पे रस्सी है, अभी सांप दिख रहा है ना।
सांप दिख से भाग रहे हैं, मिथ्या मिथ्या लग रहा है। जी, जिस दिन रस्सी दिख गई उसके बाद में ठीक है, तो ये जगत जो है ये आपको जगत दिख रहा है। हाँ। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब पता चल जाएगा कि अरे ये ब्रह्म है, समझे ना। जी, जी, तो वो जगत जो जगत अभी हमें जगत के रूप में दिखाई दे रहा है, वो आपको उसके बाद में ब्रह्म के रूप में दिखाई देता है। श्री रामकृष्ण क्या कहते थे? वो कहते हैं मैं सबको देख रहा हूँ, ये तुम सब भगवान है, ये पलटू है, ये पलटू मानो भगवान है, उसके ऊपर एक उसने खोल एक पहना। खोल पहन रखी है, एक चादर डाल रखी है, भगवान की चादर। तो ऊपर से नाम रूप पीछे से दिख रहा है, ऊपर से चादर तो दिख रहा ही ना। तो इस प्रकार से जब साक्षात्कार होता है तब ब्रह्म सत्य और जगत भी सत्य हो जाता है, दोनों एक हो जाता जी। है। ओके, हाँ, अब एक आखिरी सवाल, क्या महात्मा के जीवन में संकल्प नहीं आखिरी होता है, वो संकल्प रहित होते हैं? तो फिर जो व्यक्ति संकल्प रहित होते हैं वो जीवन में दिशा भटक जाते हैं, वैसा कहा जाता है। तो ये महात्मा क्या होते हैं? क्या 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 देखो, ऐसा है हाँ, कि एक महात्मा ने कहा है अपने संकल्प काटते चले जाओ। गीता में क्या कहते हैं? हाँ, संकल्प संकल्प प्रभवान प्रभवान। भगवान, है ना। हाँ, संकल्प से कामनाएं उत्पन्न होती है। मैं वहां जाऊंगा, मैं खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और मैं संसार में बाधाओं में बढ़ता चले जाता हूँ। इसको काटो। भगवान कहते हैं सर्व संन्यासी, समस्त कल्पों को जो दूर करता है वो होता है, वो संन्यास है। वो आगे जाके योगारूढ़ हो जाता है, वो चित्त प्रज्ञ हो जाता है। जी। तो साधना के समय में सर्व संकल्प संन्यास होना पड़ता है। अब आगे क्या आपने कहा है उसको? आगे क्या है? अंतिम लाइन क्या है आपकी? पढ़िए फिर तो से फिर जो दिलीप भाई। व्यक्ति संकल्प रहित होता है, जनरल जीवन में जिसका हाँ कोई संकल्प नहीं है, तो वो दिशा भटक जाता है, कोई उसके हाँ, दिशा शून्य हो जाएगा वो तो। पर वो भक्ति में नहीं लगा हुआ है, पर संकल्प प्रभवान, संकल्प त्याग करना ही, संकल्प त्याग ही तो दिशा हो गई। यानी संकल्प त्याग ही तो दिशा है। सब संकल्प को तो काटते चले जाओ, काटते चले जाओ। जी, एक कठिन तपस्या है, लेकिन बहुत उच्च कोटि की साधना है ये। जी, हाँ, अभी हमको समझ में नहीं आता। अभी तो हम प्लान करते हैं, ये करना है, ये करना है, लिस्ट बनाते हैं, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। सुबह उठ के एक बना देना, आज ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, भगवान जैसा कराते हैं वैसा करते हैं। यस, तो ये उच्च, बहुत उच्च स्थिति है। संकल्प त्याग करना अपने आप में एक साधना, जी, ये उच्च स्थिति है। अभी आपको प्लान करके साधना करनी चाहिए, हाँ, उसके जी, बाद में। बस महाराज। ठीक है, ओके, हो गए आपके प्रश्न? यस, ओके। अच्छा अच्छा, अब आपका है, किसके प्रश्न है? जस्ट ए मिनट। के बाद में सुबीर का हो गया, दिलीप भाई का हो गया। इतु जी बोलो, है तुम्हारे क्या मेरे। प्रश्न? हाँ, हाँ जल्दी से, तुम्हारे मेरा- भी तो मृत्यु के संबंध में है ना क्वेश्चंस? जी, हाँ पहला क्वेश्चन है, there could be no fear of death, but if the realization in this life is not possible, we have to take another life. People forget everything of the previous life. Then how the comprehension of conquering the death is possible? क्या समझा नहीं? अब तो हम तो सब मरने के बाद सब भूल जाएंगे, तो तुम्हारा कहना है कि फिर अगली नेक्स्ट जो लाइफ कैसी होगी साधना होगी? तो क्या क्या होगी, कैसी होगी, कहाँ से शुरू होंगे, ये बोल रहे हो ना? जी जी तो गीता में है। अरे ये तो तुम्हारे याद करने पे नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है ये सब। अगर तुम इस जन्म में जन्मे हो तो तुमको जो कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण है, तो हम एक प्रकार से काम, पर्टिकुलर वे वी आर लिविंग। तो ये बिकॉज ये सब संस्कार में रहते हैं या सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी जी चलो। said, then alone can death cease
when I am one with life. So please clear this idea. So one with life. वो अभी हो गया तो life life. life LIF already discussed the three. Yes. दिलीप भाई ने किया ना. Yes. Then alone I will become a good dress when I am one with life. Then I will go again above misery when I am one with bliss. Then I will again go get knowledge when I give up ignorance. ये तो discuss हो चुका already. Detail में हो. अच्छा, third question है, according to Thomas Kim, you should order your every deed and thought as though today were the day of your death. The same question like Mr. Shah. That isn't it a specific approach? Because the spiritual aspirant progress or learn every day at least a bit to hope to learn something the next day. Is it wrong? No, वो तो discuss हो चुका है ना. और अच्छे से करना का. You see, imitation of Christ में जो बोला है उन्होंने, you have to constantly remember death and yet struggle. That is the point. Still you can go on struggling. As if, जैसा है imitation of, ये भी कहीं है कि ऐसी साधना करो मानो 1000 वर्ष जीना है और संसार में ऐसा रहो जैसे कल ही मेरी मृत्यु हो जाएगी. साधना को और तीव्र करना है. That is all. साधना को इंटेंसिफाई करना है और संसार को जो है वो कम डाउन करना है. तो एक में उसको डेथ के कारण, डेथ का चिंतन करने से ये हो सकता है. अच्छा, नाउ उसके बाद में उसको ले रहे हैं हम उदय. अब ये डेथ के क्वेश्चंस हो गए हैं, मोस्टली हो गए हैं. अब उदय चौरासिया का प्रश्न है. उदय. प्रणाम महाराज. हाँ भाई, तुम्हारा प्रश्न बोलो. महाराज वचनामृत से ये प्रश्न है. हाँ, पढ़ो उसको, पोर्शन को पढ़ो. हाँ, ये तारीख 22 अप्रैल 1883. हाँ, इसमें प्रश्न है ब्रह्म भक्त का भोग के अंत का अर्थ क्या है. श्री रामकृष्ण कहते हैं, कामिनी कांचन भोग है. जिस कमरे में इमली का अचार और पानी की सुराही है, उस कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है. रुपया, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख, ये सब भोग एक बार न हो जाने पर, भोग का अंत न होने पर ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती. बस. तो इसमें जो प्रश्न है वो ये है महाराज कि भोग के अंत का अर्थ क्या है. श्री रामकृष्ण एक दृष्टांत देते हैं. एक बच्चा खिलौने से खेल रहा है, खूब मस्त है खिलौने से. उसके बाद में चिल्लाता है माँ माँ. तो माँ आके उसको एक मिठाई दे देती है. माँ बिजी है, फिर भूल जाता है, थोड़ी देर तक खेलता रहता है. उसके बाद में मिठाई भी फेंक देता है, खिलौना भी फेंक के जोर से माँ को चिल्लाता है व्याकुल होके. तो माँ आके उसको गोद में उठा लेती. ठीक है, यह है व्याकुलता, भोग का अंत. भोग का अंत यानी जब आपको भोग अच्छा न लगे. और आपने फिर ययाति की बात भी कही कि ययाति के तो भोग पूरे नहीं हुए. उसने अपने लड़के का यौवन लेकर और फिर भोग किया और उसके बाद भी भोग का अंत नहीं हुआ. तो आपका ये प्रश्न फिर भोग का अंत क्या है, कैसे होगा, यही तो ठीक है ना. दैट इज द पॉइंट, इजंट इट? जी महाराज. हाँ, याद रखिए 90% नहीं 99% लोगों का भोग का अंत नहीं होता. बूढ़े हो जाते हैं तो भी नहीं होता. अगर पुनः जवानी मिल जाए तो पुनः वहीं जहाँ से छोड़ा है वहीं से चालू करेंगे. कोई भोग का अंत नहीं होता, वैसा के वैसा होता. इन स्पाइट ऑफ नोइंग, ये जानते हुए भी कि इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल
जैसे कहते हैं ना कि टेस्टलेस वो आमड़ा आमड़ा फल होता है जिसमें गुठली गुठली होती है और एक चमड़ा होता है, उसमें थोड़ा सा टे होता है और कुछ नहीं होता है, इसी प्रकार का है। लेकिन उसके बावजूद लोग उससे संतुष्ट नहीं होते, ये चलता ही रहता है, कभी भी उनको व्याकुलता नहीं होती, वो काम जो है वो बढ़ता जाता है, ठोकर खाते हैं, उसके बाद में भी कुछ नहीं होता, कष्ट पाते रहते हैं फिर भी नहीं होता, बार बार ठोकर खाने के बावजूद भी नहीं होता। ये है। अब प्रश्न ये है कि आपने अगर भोग का अर्थ क्या है, यानी भोग का यानी इसमें यह है कि भोग उस ओर मन जाएगा ही नहीं। हम बच्चे खिलौने, बच्चे जो जिस खिलौने से खेलते हैं उसकी ओर तरफ हमारा मन जाता है क्या? हम नहीं जाता। आपके कुछ हो गए खाने, कुछ तो खाने पीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन घूमने फिरने की इच्छा भी है आपकी, तो वो थोड़ा सा बचा हुआ। तो ये हम सब जान जाते हैं कि हमारे कुछ भोग तो पूरे हो गए हैं, कुछ भोग की इच्छा हमें अभी भी विद्यमान है। इस तरह हम समझ सकते हैं भोग का अंत क्या है। अब प्रश्न ये है कि भोग का अंत कैसे होगा। श्री रामकृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि छोटे छोटे जो भोग है, वासना है, उनको भोग और विचार के द्वारा दूर करो। तो आपकी इच्छा हुई कि चलो थोड़ा सा हम उत्तराखंड में, हिमालय में घूम के आएंगे, ठीक है, हो आइए, लेकिन उसके साथ में विचार कर दिए कि अरे यही तो है, इसी को बोलते हैं पहाड़ देखना, ये बर्फ छपा हुआ, और क्या हो गया, ये तो हो गया ना, बस थोड़ी देर रहेगा और चला जाएगा। विचार के द्वारा और भोग करके दूर करो। अब आपको लगा कि मैं मिनिस्टर बनूं, बाबा इस वासना को पूरा करने में मत जाइए, नहीं तो फंस जाए। उसको विचार के द्वारा ही दूर करना है। तो छोटी छोटी वासनाओं को भोग और विचार के द्वारा, और जो बड़ी वासनाएं हैं उनको केवल विचार के द्वारा, और जिसका विचार स्ट्रांग होगा फिर एक बार छूट गई तो फिर नहीं। बुद्ध ने सारी वासनाओं को विचार के द्वारा ही छोड़ा। उनको तो भोग होता था, तो उसके बाद में एक बार जो छोड़ा तो छोड़ा, फिर वासनाएं उठी मन के अंदर, मार उठा, लेकिन उसकी चिंता नहीं की, विचार के द्वारा उनको उन्होंने भगा दिया। सो ये इसका मतलब है। अब भर्तृहरि थे, उनके जीवन की घटना मालूम है ना, वो तो राजा थे और उनकी पत्नी जो है वो व्यभिचारी निकली। उनको जब पता चला तो उनको वैराग्य हो गया। तो ये एक घटना हुई, दुर्घटना हुई, एक चांटा लगा संसार में। उनका लगा अरे राम राम, मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, उसके लिए मैंने अमृत फल दिया, उस अमृत फल को उसने मिनिस्टर को दे दिया, और अपने प्रियतम को, अपने दूसरे प्रेमी को दे दिया, उस प्रेमी ने उसको अपनी पत्नी को दिया, उस पत्नी ने दूसरे को दे दिया, घूम फिर के फिर वो उनके हाथ में आ गया। मैं कहा कि यही तो संसार है, और उनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य शतकम जो उन्होंने लिखा है उसी के बेसिस पे लिखा है। तो कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, विचार यदि बना रहे तो हमको वैराग्य हो जाता है। हमारे भोग से, बिना विचार के भोग से मुक्ति नहीं मिलती, याद। अच्छा, तुम्हारा प्रश्न का कुछ पोर्शन हुआ? हाँ महाराज एक प्रश्न और। नहीं, ये वाला प्रश्न तो हो गया जी, आपने इसमें बोला महाराज कि विचार स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके हो गया लिए ना क्या करें महाराज? संजय? क्या हुआ? महाराज हाँ विचार स्ट्रांग कैसे हो? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ तो रही ये है। है कि हाँ, विचार जो है वो तो आपको, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल। कुछ भक्ति से भक्ति वाले होते हैं, कुछ लोग जो है वो ज्ञान प्रधान होते हैं, कुछ लोग काफी स्ट्रांग होते हैं विचार में। अब ये है कि ये तो सत्संग के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा, वैराग्यवान महापुरुषों की जीवनी के द्वारा, इसके द्वारा हम उसको स्ट्रांग करते हैं। जी महाराज। अच्छा, और भी था तुम्हारा गीता का? हाँ महाराज।
बोलो। महाराज ये उसी का पार्ट था। अध्याय 3 श्लोक 39। हाँ, इसमें लिखा है कि आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो इसमें वही बात है कि अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका रहता है। तो उसके बाद में आगे क्या कहा है, उसका प्रश्न यह है कि उससे कैसे विजय प्राप्त करना है। दैट्स द पॉइंट, इजंट इट? तो उसमें गीता में आगे बोलते हैं तो इंद्रियाणि मदो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये काम के अधिष्ठान है इंद्रिय, मन और बुद्धि। इसके द्वारा एते विमोहयत्येष ज्ञानिनो नित्यवैरिणा एटसेट्रा। इसलिए तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभः आत्मानं जीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ये पहले इंद्रियों पर कंट्रोल करो, मन पर कंट्रोल करो, बुद्धि पर कंट्रोल करो, और इस जो शत्रु है तुम्हारा उसको नाश करो। ठीक है? तो वहां पे इन शॉर्ट भगवान ने इंद्रिय निग्रह, मन के विचार यानी विवेक, और उसके बाद में बुद्धि में प्रतिष्ठा यानी ये खराब है। जैसे बुद्धि में प्रतिष्ठा यानी बच्चे को माँ बोल देती है कि देखो बेटा वहां नहीं जाना, वहां पे हवा है, तो वो बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गया, वो विचार नहीं करता, माँ ने बोला है या नहीं बोला। तो अगर ये किसी ने बोल दिया कि भाई ये काम में मत पड़ो, फंसोगे, और अगर उसको विश्वास कर लेते हो तो मन में वो दृढ़ बैठ जाता है बुद्धि में, और अल्टीमेटली उसके बाद में वो कहते हैं आत्मा को भगवान कहते हैं इनको तीनों को एक बार कंट्रोल करके अपनी आत्मा को जानो। दैट इज द वे। प्रश्न यह है कि ये विचार के द्वारा नहीं होता। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, एक घटना है, एक राजा एक व्यक्ति की वो है, तो उसको भोग में लगा हुआ था। राजा ने क्या किया, राजा ने कहा कि तुमको 7 दिन के बाद फांसी हो जाएगी। उसके बाद में भोग करता था तो भोग में उसका मन लगता ही नहीं था, निरंतर फांसी की उसको चर्चा, उसको मन में फांसी का विचार होता रहता था उसको। फिर उसके बाद राजा ने पूछा कि अच्छा ये 7 दिन में तुम्हारे मन में विचार आया कि नहीं? कोई विचार नहीं। तो इस प्रकार से मृत्यु का विचार है या परमात्मा का विचार है या जो भी कोई विचार अगर स्ट्रांग रूप से होवे तो ये काम टाम सब दूर हो जाए। दैट इज द पॉइंट। और कोई तुम्हारा प्रश्न था? नहीं महाराज। अब इतु हो गया ना? इतु हो गया, दिलीप भाई हो गए, निवेदिता जी महाराज। पहला मेरा प्रश्न नहीं, पहला प्रश्न नहीं, पहले एक्सपीरियंस बोलो। तुम्हारे प्रश्न जो है ना वो तो सेकेंडरी प्रश्न है, उसमें दम नहीं। पहले तुम्हारे क्या बोलो। मेरा वैराग्य का प्रैक्टिस, वैराग्य इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। Vairagya is very difficult to practice, but with the Sunday classes, I am trying to practice with full strength. When I am happy with the few things, that's why I have stopped buying unnecessary things. Pehla. But I am thinking, by vichar, I am thinking that each morsel which I am taking, it is the morsel of other person. I am snatching their morsel. So I try to distribute the things to others, and I do not want anything in return. Third hai, I have understood my nature of parigraha, and now I think how many things I have collected. So I am trying to reduce it slowly, distribute to these things who needs it, and reducing the things slowly. So I am thinking that aparigraha is directly related to vairagya. Then
Fifth is I have refused recently the Ganga Sagar Yatra with my close friend. Why unnecessary roaming here and there? And instead of that, I can sit at home and do my sadhana. Good, good, okay. ठीक है? जी. अच्छा, your questions अपने इतु? जी. इतु, are you? तुम्हारे the difficulty of वैराग्य बोलो तो? जी. Difficulty not to have passion for anything. For example, gardening, learning more and more about any subject, etc. That is my difficult. Means I want that, but I have to reduce it. Okay, To avoid many friends. I have many friends, but I have to avoid them. And to avoid any desire to persist, any desire. So that is also very difficult for me. To start with this, the practices is fine, but to continue this forward and forever might be difficult. Okay. ठीक है. So good. Everyone will do introspection and see where we are attached. फंसे कहाँ पे हैं पता चल जाएगा. अच्छा, और एक प्रश्न जीसस क्राइस्ट का किसने पूछा था? दिलीप भाई? जी. Yes. Yes. Christ have a corresponding idea in the crucified Jesus. Jesus Christ gladly embraced death on the cross so as to bring deliverance to millions of suffering people. He inspires a Christian not only to be afraid of death, but to gladly accept it for the good of humanity. What is the meaning of here, good of humanity? गुड ऑफ ह्यूमैनिटी इस पहला ईसा मसीह के उसमें तो ये है कि ईसा मसीह ने जो क्रूस पे उन्होंने जो कष्ट सहन किया, मृत्यु के समय जो कष्ट किया, उनको मारा, यानी ये सब जो हुआ ना, उसको पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं. बहुत कष्ट हुआ, उनको कोड़े मारे गए, उसके बाद में उनको सूली पर चढ़ाया गया. तो इसके द्वारा उन्होंने संसार के लोगों का दुख अपने ऊपर ले लिया. जैसे कहते हैं ना कि ठाकुर ने गले में कैंसर हुआ तो गिरीश चंद्र घोष के पाप उन्होंने अपने ऊपर लिए. इसी प्रकार से ईसा मसीह ने वो पाप जो है दूसरों के वो अपने ऊपर ले लिए. तो गुड ऑफ ह्यूमैनिटी का एक अर्थ हुआ है दूसरों के पाप अपने पर लेना. और ये चीज जो क्रिश्चियंस भी उसको स्वीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु संसार के कष्ट मुझे दे दो, संसार के जो पाप हैं वो मैं अपने पर ले लूं. और वो लोग कष्ट सहन को बहुत इंपॉर्टेंस. और दूसरे को दुख यानी उसको क्या है कि वो लोग जाते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में. अब तो पता नहीं होगा नहीं कि पहले वो लोग जाते थे क्रूसेड्स के अंदर, जहाँ मुसलमान लोग हैं उनको कन्वर्ट करने जाते थे, तो लोग पकड़ के उनको मारते थे, तो शांति से उसको वो सहन करते थे. और ऐसे सहन करने के कारण होता था क्या था कि लोग कन्वर्ट हो जाते थे. यानी जो गुड ऑफ अदर्स है ना, एक पहला है कि दूसरों के पाप को दूर करना और दूसरों को कन्वर्ट करना, उनको पापी यानी उनको जो अगर हिंसा वाले हैं तो अहिंसक बना देना, संयमी बना देना, उनमें दूसरों के अंदर के सुख को, अपने दूसरों के अंदर सद्गुणों का विकास कराना. और तीसरा ये है कि जाके लोगों की सेवा करना, यानी किसी प्रकार का भी चैरिटी करना, गरीबों की सेवा करना. बीमार है, कोढ़ी है, तो कोढ़ी की सेवा करना, भले मुझे कोढ़ हो जाए फिर भी मैं सेवा करूंगा. तो ये दुख, कष्ट और मृत्यु को वो लोग गौण मानते हैं. उसके कारण किसी भी प्रकार से गुड संसार का दुख दूर करना, कई प्रकार के आध्यात्मिक दुख, पाप को दूर करना, शारीरिक दुख दूर करना इत्यादि सब कुछ हो गया. राइट. अच्छा, हो गया. अब रहा चंदन, कुंडू. यस महाराज. तुमने कुछ लिखा था ना? This is
conquest of death, Maharaj. मेरे को लिख के भेजा था ना तुमने? हाँ Maharaj. You had sent. So one sentence, Maharaj. This sentence I have got confusion, not about the article as such. And the sentence starts in para 3. Our deep attachment to life and its pleasures does not allow us to accept and recognize the reality of misery and death. इसमें मेरा confusion ये है कि because we are मतलब attachment to life तो हमारा है और life की pleasures भी हम जानते हैं, but उससे हमारा मुझे तो लगता है कि हमारा this reality of misery and death को हम और थोड़ा स्पष्ट देखते हैं. That's why we make provisions to reduce our misery and to provide for those who are dependent on us. Like I said, I find that the attachment to life makes us conscious of our responsibilities and we make efforts to resolve the challenges of life. It is because we are acutely aware of the miseries around, we try to reduce them and solve the problems. We know that death is inevitable, so we make provisions for those who are dependent on us. Even we create a will for distribution of property. To me, all these are proof enough that we accept and recognize the reality of misery and death. ये मुझे इस सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आया. नहीं, that's all right. यदि तुम इस तरह समझते हो तो कोई ठीक ही है. Yes, Maharaj. That's all right. कोई दिक्कत नहीं. Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? महाराज एक सवाल वैराग्य से है महाराज. पूछो. एक सेकंड महाराज. ये वशीकार वैराग्य जो कि विविदिशा वैराग्य का अंश है और विद्वत वैराग्य, इन दोनों में क्या कोई फर्क है महाराज? वशीकार वैराग्य और विद्वत वैराग्य. विद्वत वैराग्य जो है ये जिसने ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ज्ञानी हो गया है, उसमें स्वाभाविक रूप से आता है. और वशीकार वैराग्य हम कह सकते हैं कि ये साधना करते करते आप एक स्टेट पे आ जाते हो जब आप संसार की सभी वस्तुओं से पूरी तरह वैराग्यवान हो, किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगे. लेकिन ज्ञान है कि नहीं ये डाउटफुल है. वैराग्य परफेक्ट है, उच्चतम परफेक्ट है, लेकिन ज्ञान है कि नहीं ये डाउटफुल. लेकिन विद्वत वैराग्य के अंदर ये है कि ज्ञानी हो गया है. वो जैसे याज्ञवल्क था, तो याज्ञवल्क जो है वो पहले तो गृहस्थ थे ना, 2 पत्नियां थी और ज्ञानी हो गए. ज्ञानी होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी. तो ये है विद्वत सन्यास. विद्वान यानी ज्ञानी हो गया और उसके बाद में वो वैराग्य को, उसके जीवन में जो वैराग्य है उसको विद्वत वैराग्य. तो ये वेल थ्योरेटिकल डिफरेंस थोड़ा सा है, लेकिन that is not really matter much. हाँ, टेक्निकल. ठीक है महाराज. हाँ. अच्छा, अब हम नेक्स्ट इशू लेते हैं. दिलीप भाई जी, हमने कुछ रूल्स फॉर गाइडेंस ऑफ हाउस होल्डर डिवोटीज बना के सबको भेजे हैं. मिले आप लोगों को? जी. You got them? Okay. मिल गया. तो ये किस लोगों का, विशेषकर दिलीप भाई का कहा था कि एक बार डिस्कस कर लिया जाए. इनको एक्चुअली व्रत का रूप भी दिया था और सेवा रूरल के कुछ 14 लोगों ने उनको व्रत भी लिए थे. तो जो भी हो, लेकिन आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको इनके बारे में नहीं मालूम होगा. तो इसलिए हम सोचते हैं कि इनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया. डिस्कस क्या, हम पढ़ते चले जाएंगे और उसमें अगर कोई डिस्कशन होगा तो डिस्कस कर दिया जाए. Shall we begin? पहला, wake up early in the morning at least half an hour before sunrise. Okay? Yeah. अच्छा,
मैं पढ़ता जाऊंगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो बोलिएगा, नहीं तो हम पढ़ते चले जाएंगे। Second, after preliminaries and avoiding prior worldly talk, do spiritual practice, puja, japa, dhyan, meditation, chanting of hymns for predetermined specific time as per prescribed method. आप जिस पद्धति से सुबह ध्यान जब पूजा करते हैं उसको नियमित रूप से उसके बाद कीजिए। Third, study regularly inspiring lives of saints and scriptures like Bhagavad Gita, Upanishad, Ramakrishna, Vivekananda literature and similar literature of other religions. यानी ये हुआ स्वाध्याय। जिस प्रकार ध्यान जब रेगुलरली करना है उस प्रकार नियमित रूप से स्वाध्याय करना चाहिए। चौथा, युक्ताहार विहार, गीता भगवान कहते हैं eat in moderation, avoid eating, overeating. युक्ताहार विहार, भंडारा हुआ तो भी सावधान रहिए, पेट इतना नहीं भर जावे कि फिर आप ध्यान जप नहीं कर सकते। पांचवा, restrict personal requirement, discard unnecessary personal items regularly and avoid consumerism so as to move towards simple lifestyle. जैसा आप लोगों में से कुछ कर रहे हैं, निवित्ता वगैरह कर रहे हैं, ये अननेसेसरली हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, कंज्यूमरिज्म मत कीजिए। कैन आई डू विदाउट इट, कई चीजें जो है हमने फालतू भर रखी हैं उसको आप कम कीजिए और आगे अधिक बढ़ाने का प्रयत्न मत कीजिए। छठा, ट्रुथफुलनेस, सत्य का जहां तक संभव हो सत्य का पालन करने का प्रयत्न कर दीजिए। जबरदस्ती असत्य मत बोलिए जानबूझकर, और इसलिए आपको मौन रहना पड़ेगा, मौन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग बोलते जाते हैं तो उसमें अगर ज्यादा बोलेंगे तो कुछ न कुछ झूठ हो ही जाए, तो उसके साथ में मौन का प्रैक्टिस और ज्यादा संभव हो सत्य को बोलने का प्रयत्न कीजिए। होता क्या है, अगर आप ठीक ठीक करें, ठाकुर क्या करते थे, ठाकुर ने कहा कि मैं झाड़ू तो ला दूंगा, यानी वो मैं शौच के लिए जाऊंगा, अब शौच की हाजत नहीं है फिर भी क्या किया, अब लेके गए कि मैं बोल दिया हूँ, वो लेके चले गए और घूम के आ गए, यानी वो सत्य की प्रयोग को उन्होंने पालन कर लिया। मजेदार बात कही उन्होंने कि मैं लूची नहीं खाऊंगा, और खाने के लिए गए वहां तो बोल दिया मुंह से कि मैं रोटी नहीं पूरी नहीं खाऊंगा, तो क्या करूं, सत्य पालन करने के लिए उन्होंने मिठाई से पेट कर। ये छोटी छोटी बात स्वामी ठाकुर बोलते हैं ये, लेकिन इसको हम धीरे धीरे अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करेंगे, फिर आपको लगेगा कि कुछ एक परिवर्तन हमारे जीवन में होगा। 7, as far as practicable, do not hurt anyone by thought, word and deed, and try to make others happy by sweet words and polite conversation. हमारा व्यवहार, बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि हमारी बातचीत से किसी को कष्ट न होवे, किसी प्रकार से दूसरे को कष्ट न देवे यथासंभव। Not to cheat or be cheated, not to bribe or receive bribe. भी सावधान, आज के जमाने में तो दिलीप भाई जानते होंगे ये बड़ा मुश्किल है, सब जगह किसी न किसी प्रकार का ये दूसरे को ब्राइब देना, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के कमीशन इत्यादि देना, ये सारी बातें बहुत सारी चलती हैं आज के जमाने में, बहुत कठिन है। तो ये एक सावधान रहना है, ये असत्य अस्तेय अस्तेय चोरी के अंदर आ जाता है, अस्तेय के अंदर चोरी का एक पार्ट हो जाता है। Try to live in the family as the maid servant in a rich man's house as advised by Shri Ramakrishna. श्री रामकृष्ण कहते हैं संसार में दासी की तरह रहो। आप लोग सब संसार में हैं, इस भाव को मन में डालने का प्रयत्न कीजिए ना कि मैं संसार में हूँ लेकिन मेरा घर तो भगवान के घर, मेरे को भगवान ने यहाँ पे भेजा है, ये मेरा एक एम्प्लॉयमेंट है और मैं हूँ भगवान की या भगवान का, दासी की तरह संसार में रहने का प्रयत्न करो। अपना कोई नहीं है, आप हैं, वो कोई किसी भी तरह में से आपको बुला लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो इस प्रकार से भगवान के दास समझ के संसार में है, इस प्रकार के रहने का प्रयत्न करें। एनकरेज महाराज, एक मैं बोलना चाह रहा हूँ, गुड to live by the rules and regulations and laws of the society. Not to do that is also asteya in some way. That is true. That is true.
आर्टिकल में है क्या ये? में नहीं है, मैंने इसमें मैंने कहीं ना कहीं मैंने भी इसको मेंशन किया है कहीं। When I live in a family, when I live in an ashram, I must follow the rules and regulations of the rules of ashram. है महाराज, ओबीडियंस का था पहले। अच्छा, ओबीडियंस। नहीं महाराज, एक मिनट डॉक्टर साहब ने क्या कहा वो बात मैं एक बार सुन नहीं पाया, एक बार डॉक्टर साहब फिर से कहेंगे? to obey the rules and regulations of society. जैसे एक एग्जांपल है, आप रेड लाइट है, आप रेड लाइट को में रुकेंगे, उसको पार करके नहीं जाएंगे। जी जी, ये वैसे एग्जांपल है। और जब महाराज जी ने जैसे कहा कि हम जब घर में रहते हैं तो उसमें जो नियम है उनको पालन करें, या आश्रम में रहें तो वहाँ के नियम पालन करें। अच्छा, ठीक है। मुझे ये कंफ्यूजन हुआ था कि जैसे महाराज कह रहे थे कि सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स हैं, आजकल प्रैक्टिस में आ गए हैं गलत चीजें, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वो चूंकि प्रैक्टिस में अडॉप्टेड है, हम उसको ना करें तो फिर हम वो भी गड़बड़ हो जाएगा। मुझे ऐसा समझ आया था। नहीं, गलत जी वो अलग है। तो प्रैक्टिस का प्रश्न। जी जी जी, वो दूसरी चीज। And encourage family members to lead God-centered life of service renunciation. Okay? Yes. अकेले आप नहीं, आपके परिवार के सब कई लोगों को एक साथ ये चीज करनी चाहिए। 11. Serve saintly and holy persons and organizations like Ramakrishna Order and its monks. Okay? Yes. 12. Render service to poor to the best of our ability, including donation to deserving individuals and organizations. ये सब सेवा के अंदर आ जाते हैं। 13. Consider utmost importance of brahmacharya and the example of conjugal relationship of Sri Ramakrishna and Ma Sarda. Try to rise above physical relationship to the level of spiritual companionship. आप लोग family में हैं, try to rise, live at a spiritual level. Relationship. 14. Attend relevant spiritual retreat or live in solitude. इसमें लिखना है attend spiritual retreat and Zoom meet, relevant Zoom meet, है ना, ये भी लगाना पड़ेगा। or live in solitude or holy company at least once a year for 3 days. ये पहले हम लोग करते थे, सेवा रूलर में जाया करते थे, तो 3 दिन की रिट्रीट वगैरह होती थी। इस प्रकार का रिट्रीट वगैरह कर सके तो अच्छा है, नहीं तो ये आजकल तो Zoom meet होने लगे हैं। Participate in regular satsang with like-minded persons. Same thing continue. यानी एक ग्रुप बना लिया, 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति ऐसा। अब वो 16 जो था वो तो उनके लिए है, जब आप कोई व्रत किया जाए और उसको करो तो उसमें बीच में उसमें एक्स्ट्रा जप इत्यादि करने की बात। तो ये रूल्स बनाए थे और उसके बाद में उसका कंटिन्यूएशन भी है। Hints for good meditation. Consider your Ishta as your most beloved, affectionate, closest relative. अपने इष्ट को अपना प्रियतम बनाना पड़ेगा, फ्रेंड बनाना पड़ेगा, इंटीमेट बनाना पड़ेगा. This is very, very important for good meditation. Consider him or her physically very close to you. Okay, this is also कि भगवान है वो दूर है ऐसा नहीं, पास में है, हमेशा एकदम पास में है, हृदय में है, हमारे कमरे में है, यहाँ ऐसा सोचना पड़ेगा. तीसरा, in meditation try to keep this intimacy and closeness as long as possible. meditation में बैठेंगे तो ये सोचिए कि भगवान हमारे अत्यंत निकट हैं और वो कंटिन्यूसली बना रहे हैं. 3 hints for becoming introspective. ये आप लोग सब देख रहे हैं तो? 3 hints for becoming introspective. First, destroy, suppress, disregard all संकल्प. वो अभी बात हो गई है. संकल्प जब मन में उठेंगे उनको काटना पड़ेगा. बार बार संकल्प एक लिस्ट बना के काम करना से नहीं होगा. अरे मैं अभी रिटायर हो गया हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ कि मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे दुख होता है.
कुछ न कुछ छोटा मोटा काम हो ही रहा, चल ही रहा। सेकेंड, नेवर टेक ए हेस्टी डिसीजन, पोस्टपोन योर अर्ज टू डू एक्शन। ये काम करना है, फलानी जगह जाना है, अरे आज नहीं कल जाएंगे। थोड़ा सा उसने अपने संकल्पों को काटने का प्रयत्न करना है, उसको डिले करना। महाराज यहाँ पे 1 मिनट, महाराज हाँ। सवाल ये है, नेवर टेक ए हेस्टी डिसीजन, दैट्स फाइन, बट पोस्टपोन योर अर्जेस टू डू एक्शन। अच्छी जगह भी जाना हो, आपको नहीं, जाना, नहीं, भगवान के वहां जाना, नहीं, तो भी इसको क्या पोस्टपोन करेंगे क्या? ये वो बाद में आएगा, ऊंचा लेवल है ये। पहले तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा जी, लेकिन बाद में एक ऐसी सिचुएशन आएगी तब उसके ऊपर चले जाओ। राइट जी, राइट। थर्ड, ask yourself before any endeavor whether you can do without it. Yes. Okay? Right. Fourth, do japa with concentration, thinking of its meaning. Yoga Sutra. Tad japa tadartha bhavana. Then hints for busy devotees. Okay? जी. You must have one good meditation in the morning every day. At least one good meditation you must have. On Sundays and holidays, spend more time in meditation and spiritual practice. Okay? Yes. Go to some retreat or in solitude for 3, 5, 10, 15 or more days at least once a year. Yes. सेवा रेडल वालों ने तो एक बना रखा है, एक रिट्रीट का कोर्स बना रखा है, और वो वहां पे कभी पता नहीं आजकल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन बना रखा है वहां। क्या वोरा जी सीखे Yes, Maharaj. You have got a retreat, isn't it, on the bank of Narmada? Yes, Asa. अच्छा, आप लोग कहीं जाते हो आजकल कि नहीं जाते हो? नहीं जाते, इतना नहीं जाते जितना जाना चाहिए। कोई अभी नहीं जाता। कोरोना है। वो तो कोरोना से दूर हो जाएगा। नहीं अभी इसी वास्ते बाहर के लोगों को भी हमने पहले ऑप्शन नहीं देते थे कि बाहर के लोगों को नहीं, ये सिर्फ सेवा रूल के, अब इसका यूज हो जाए इसलिए बाहर के लोगों को भी अलाउ कर रहे हैं अभी। Okay, good. अभी नए रूल बना दिए हैं। अच्छा, ठीक, वेरी गुड। फोर्थ, प्रैक्टिस स्वामी जी तो यूज हो जाएगा। कौन है? आप आ जाए तो यूज हो जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रैक्टिस प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हाइल वर्क, यानी भगवान का स्मरण मनन हमेशा बनाए रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। काम करते हुए भी बनाए रहिए, गेट इट इज ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट। चलते फिरते समय तो भगवान में मन लगा रखा ही जा सकता है। Keep religious booklets like Gita, Practice of Presence of God, Imitation of Christ, etc. close by, in the bag, in the purse, etc. तो इससे बात को आपको बराबर रिमाइंडर होता रहेगा। ठीक है जी, ओके। अब कोई क्वेश्चन ये आपको पूरा हो गया दिलीप भाई? जी हो गया। अच्छा, नाउ अब महाराज इसमें एक है, दिस इज आई एम स्पीकिंग नॉट फॉर मी, मेरे को बहुत फायदा हुआ है इसलिए मैं एट लार्ज ये बात कर रहा हूँ कि इसके बाद आपने एक ये बनाया था चार्ट, और चार्ट बना के खुद को रिवैल्यूएट करना था कि हम कितना कर पाए या नहीं, तो वैसा आप सबको एक बार, तो यही दिस इज व्हाट इट इज। यस, यही है बस। पर इसका एक चार्ट बना लिया जाए और रोज टाइमिंग्स लिख के एक हफ्ते तक, और नेक्स्ट संडे को वी शुड स्पीक हाउ फार वी सक्सीडेड। ये आप करिए जी, ये आप करिए। सेवा रूल वालों ने एक चार्ट बनाया था महाराज जी, हाँ, कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले जी। अच्छा, तो उनसे कहिए, अपने है ना पंकज भाई है ना? हाँ जरूर है, वो चार्ट हम शेयर कर सकते हैं सबके साथ। ओके, चार्ट शेयर कीजिएगा, हमको भी भेजिएगा। जरूर। देखो याद नहीं आ रहा है मुझे। उसमें हमने एक और ऐड कर दिया था कि हमारा जो समय निरर्थक और फालतू चीजों में जाता है उसको भी कम करना चाहिए। ये टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर
ऐसा वेरी है। गुड। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो पंकज जी ग्रुप में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। जरूर जरूर जी। भेज देंगे। और संजय मेरे को भेज देना। जी जी महाराज। ठीक है। Any other questions? Shall we close? मुझे लगता है कि सब लोग का टाइम हो गया शायद, इसलिए तो हम हाँ लोग हाँ, अब टाइम काफी हो गया है। जी जी, 1 घंटा 20 मिनट हो गया है करीब। तो हम लोग कैन स्टॉप इट। शायद क्लोज ही करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।